हाँ जी, हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम एंड वालेकुम अस्सलाम। जिवें कि तैनूं पता है भी उड़ान इंस्टीट्यूट स्टार्ट करन जा रहा है 11 सितंबर तो अपना नवा बैच ते यह बैच ਤੁਹਾਡੇ हर एक पंजाब ਦੇ एग्जाम ਨੂੰ कवर अप करूगा भी जिन्ने भी अपने अपकमिंग एग्जाम है। जिवें कि तैनूं पता है भी वीडियो फूड सप्लाई इंस्पैक्टर एंड काफी तरह के एग्जाम ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ अपने ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ। ठीक है, तो एग्जाम ਦੀ मतलब ਤੁਸੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਸ बैच ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਾਂ एग्जाम ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਹੋ ਪਾਵਾਂਗੇ। ठीक है, बाकी ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਜੀਤ ਰੋਡ ਸਟਰੀਟ ਨੰਬਰ 1 ਬਠਿੰਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਆਫਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 11 ਸਤੰਬਰ ਵਾਲਾ ਬੈਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ। ਓਕੇ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ। हाँ जी, सो सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਟੈਟਿਕ ਜੀਕੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਸਟੈਟਿਕ ਜੀਕੇ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਸੋ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਓਰੀਐਂਟਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਪਾਂ ਸਟੈਟਿਕ ਜੀਕੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਨਸਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੋਹਿਤ ਢਿੰਗਰਾ। तो शुरू करते हैं आज अपनी क्लास ਨੂੰ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪਸ ਫੈਮਿਲੀ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ हैं फिर आज की अपनी क्लास। तो प्रीति सुरेंद्र जी गुड इवनिंग, विक्रमजीत सिंह गुड इवनिंग जी, बलजीत कौर सत श्री अकाल, किरणदीप गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग सारिਆਂ ਨੂੰ, वेलकम अगेन टू द क्लास। सो स्टैटिक जीके काफ़ी इंपॉर्टेंट अपना सब्जेक्ट है हर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ਦੇ ਨਾਲ। तो ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। तो ਉਸੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ तो ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर आज अपने सैशन ਨੂੰ ਤੇ देखते हैं फिर आज अपना फर्स्ट क्वेश्चन की है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो राजे की है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वाइल्ड हैबिटेट ऑफ पिग्मी हॉग्स। देखो की चीज है, एक पिग्मी हॉस है, हॉस आप सूर ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ठीक है, तो पिग्मी सूਰਾਂ ਦਾ ਜੰਗਲੀ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਦੱਸਣਾ, ਆਪਾਂ ਹੈਬਿਟੇਟ ਦੱਸਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਹੌਗਸ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ पिग्मी हॉग्स। तो ये मानस नेशनल पार्क च मिलता है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, कान्हा टाइगर रिजर्व या फिर राजा जी नेशनल पार्क। हाँ जी, इंदर गुड इवनिंग जी। तो अपने आंसर देने शुरू करो। सत श्री अकाल सुनील कंतीवाल जी। तो ਜਿਹੜੇ पिग्मी हॉग्स है ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ टाइगर रिजर्व ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਇਹ ਮਿਲਦੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮਾਨਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ। तो मानस नेशनल पार्क भी एक इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जी। ये ਜਿਹੜਾ नेशनल पार्क है अपना लोकेटेड है असम स्टेट ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, सो असम ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੀ पिग्मी हॉग्स। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। असम ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਦਿਸਪੁਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ असम ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਜੀ ਦਿਸਪੁਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਮ ਕਾਰਬੇਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਰਸਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਸੀ ਜਿਮ ਕਾਰਬੇਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ। ਕਾन्हा टाइगर रिजर्व ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਰਾਜੇ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਰਾਜਾ ਜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਨੀਮਲਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕਸ ਤੇ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਗਮੀ ਹੌਗਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ। ਸੋ ਅਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਰਿਵਰ ਫਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰਾ। ਸੋ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰਾ ਰਿਵਰ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਦੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਨਦੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੋਰੋ ਆਫ ਅਸਮ। ਸੋ ਅਸਮ ਦਾ ਸੋਰੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਨਦੀ ਨੂੰ, ਅਸਮ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਦੀ ਕਰਕੇ ਅਸਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾੜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਮਗੰਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ, ਬਿਲਕੁਲ। तो ਇਹਦਾ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਰਾਮਗੰਗਾ ਹੈ ਜੀ। ਰਮਨ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। तो ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰਾ ਨਦੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਰਜੈਸਟ ਰਿਵਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਰਿਵਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਲਾਰਜੈਸਟ ਰਿਵਰ ਵੀ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਨਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਇਹਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆਪਣਾ ਦਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਦਿਬਰੂਗੜ੍ਹ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ। ਗੁਵਾਹਾਟੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਗੁਵਾਹਾਟੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ
ये दोनों शहर असम दे विच है, ये दोनों शहर ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। सो ये चीज़ आप याद रख, बिल्कुल वेरी गुड इंदर। सो माजुली जिहड़ा आइलैंड है भी आप याद रखना है, माजुली आइलैंड। तो माजुली आइलैंड भी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है, सॉरी ब्रह्मपुत्र नदी ते ही बनया हुआ है। माजुली आइलैंड इज द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड, दिस इज द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड ऑफ वर्ल्ड। दुनिया का सब तो बड़ा रिवर आइलैंड है माजुली आइलैंड, ये भी चीज आप याद रखनी है। तो इस क्वेश्चन का अपना आंसर होगा राजे ए ऑप्शन, मानस नेशनल पार्क। क्लियर है जी? हाँ जी, चलो तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन वाल राजे। सेकंड क्वेश्चन देखो की है, काफुली। काफुली की एक डेलीकेसी है ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स क्यूजीन, ठीक है। सो काफुली हेठ देते राजा दे विचों पकवान, ठीक है, यानी कि पकवान है ये, तो विचों एक स्वादला पदार्थ है। सो केड़ी स्टेट दे विच ये पकवान है जिहड़ा वो खाया जाता है, बनाया जाता है, इस पकवान का नाम की है काफुली। सो पंजाब हो गया, असम हो गया, सिक्किम हो गया या उत्तराखंड हो गया। सो काफी नवे ते इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ढिल्लों गुड इवनिंग जी। हाँ जी, ठीक है जी। सो ये चीज आप याद रखनी है। सो काफुली केड़ी स्टेट का एक इंपॉर्टेंट पकवान है, तो ये हो जाएगा अपना उत्तराखंड स्टेट का। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज उत्तराखंड, ठीक है। सो काफुली जिहड़ा है ये ना स्पिनच तो बनाया जाता है, यानी कि पालक, पालक तो बनती है ये जिहड़ी अपना पकवान है, ये पकवान पालक तो बनता। बिल्कुल हरपाल शर्मा, बिल्कुल ठीक जी, सत श्री अकाल जी, ठीक है। तो ये जिहड़ा काफुली पकवान है उत्तराखंड दे विच खाया जाता है। सो उत्तराखंड जिहड़ी अपनी स्टेट है, उत्तराखंड की कैपिटल की है राजे देहरादून। सो देहरादून इज द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड। असम बारे आप सारा डिस्कस करके आए जी, असम है ना, असम की कैपिटल की है दिसपुर। इस तो इलावा पंजाब, पंजाब की अपनी, हरियाणा की, दोनों की कॉमन कैपिटल है राजे चंडीगढ़। चंडीगढ़ का निकनेम की है सिटी ब्यूटीफुल। तो सिटी ब्यूटीफुल आप किन्नू कहने, चंडीगढ़ नू। चंडीगढ़ के आर्कीटैक्ट कौन है राजे? ली कार्बूसियर। तो ली कार्बूसियर इज द आर्कीटैक्ट ऑफ चंडीगढ़। सिक्किम जी अपनी स्टेट है, यदी कैपिटल है गैंगटॉक, ठीक है जी। तो गैंगटॉक याद रखना है। सिक्किम दे विच है ना अपनी इंपॉर्टेंट पीक भी है, तो ये भी चीज़ आप याद रखना है, कैपिटल है सिक्किम दी गैंगटॉक। क्लियर है जी? सो काफुली जी डेलीकेसी है ये खाई जाती है उत्तराखंड के। तो आंसर होगा ये अपना डी ऑप्शन, बिल्कुल ठीक। हाँ, फॉरेस्ट के हैडक्वार्टर भी देहरादून है इंदर, वेरी गुड। हाँ, जोशीमठ बिल्कुल अर्थक्वेक प्रोन एरिया, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन का आंसर दो राजे। थर्ड क्वेश्चन की है, इंदिरा गांधी फॉरेस्ट अकेडमी इज सिचुएटेड एट। तो इंदिरा गांधी के नाम से एक फॉरेस्ट अकेडमी है। सो आप दसना है भी अकेडमी केड़ी स्टेट के विच। हाँ जी, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो आंसर करो, दिल्ली दे विच, देहरादून दे विच, दार्जिलिंग या भोपाल। ज़्यादातर क्वेश्चन राजे जिहड़े फॉरेस्ट दे हुंदे आ उहदे तुसीं इक्को ही स्टेट याद रख सकते हो। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल हरपाल शर्मा जी, उही फीलिंग आप लेनी है ना। सो दसो इंदिरा गांधी फॉरेस्ट अकेडमी किहड़ी स्टेट दे विच है, शहर दे विच है, तो ये शहर हो जाऊगा राजे अपना देहरादून। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, देहरादून दे विच है फॉरेस्ट अकेडमी। इन्हां दा नाम है इंदिरा गांधी फॉरेस्ट अकेडमी। देहरादून आपां हुणे ही देखिया भी देहरादून की दी कैपिटल है जी उत्तराखंड की कैपिटल, है ना। तो उत्तराखंड की कैपिटल की है राजे देहरादून। दिल्ली नूं राजे आपां कहने एनसीटी। एनसीटी मतलब नैशनल कैपिटल टैरेटरी ऑफ इंडिया, है ना, नैशनल कैपिटल टैरेटरी। तो आप दिल्ली नूं कहने, ठीक है। दिल्ली किहड़ी नदी के किनारे है राजे? यमुना नदी के किनारे है। दिल्ली नूं आपां होर की कहने, इहनूं आपां कहने राजे सिटी ऑफ रैलीज। तो रैलियां का शहर कहने। दिल्ली का जिहड़ा स्टेट एनीमल है वो किहड़ा जी? नील गाय। सो नील गाय दिल्ली का स्टेट एनीमल। क्लियर है? दार्जिलिंग लाजे काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस है, रेनफॉल के लिए जानी जाती है, काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल है इत्थे, ठीक है, होंदी है दार्जिलिंग दे विच। भोपाल, भोपाल इज द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। भोपाल भी बहुत ज़्यादा फेमस है। 1984 दे विच भोपाल दे विच की होया सी, इत्थे एक ट्रेजिडी हो गई सी, इत्थे एक गैस लीक हो गई सी राजे, ठीक है। तो भोपाल गैस लीक ट्रेजिडी इत्थे हुई सी। सो ये चीज़ आप याद रखनी है। ये कदों हुई सी राजे? 1984 च भोपाल च। तो जिहड़ी गैस लीक हुई सी उहदा नाम सी MIC, है ना। MIC मतलब मिथाइल आइसोसाइनेट। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है, मिथाइल आइसोसाइनेट। तो ये जिहड़ी गैस है एक पैसटीसाइड जिहड़ी फैक्ट्री है उहदे विचों लीक हुई सी, ते उस पैसटीसाइड फैक्ट्री का नाम सी जी यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री।
तो उत्थे गैस लीक हुई सी, सेफ्टी मैजरस उत्थे नहीं वरते गए, ਉਹਦੇ मालिक है ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ भी ਇਹਨਾਂ ਦਾ केस ਚੱਲ ਰਿਹਾ, बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई सी, 55 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਂਪਰ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन अपन एग्जाम च बन, ठीक है। गैस केड़ी लीक हुई सी राजे, MIC। सैशन अच्छा लग रहा है, सैशन को लाइक कर दो राजे, शेयर कर दो अपने ग्रुप्स फैमिली फ्रेंड्स के नाल, ते कमेंट बॉक्स दे विच अपने कमेंट करके भी जरूर दस्सिओ। इंदिरा गांधी वॉज द फर्स्ट वूमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, है ना, तो ये भी चीज़ आप याद रखनी है। इंदिरा गांधी वॉज द फर्स्ट वूमेन टू गेट भारत रत्न, तो फर्स्ट वूमेन टू गेट भारत रत्न, तो ये भी चीज़ आप याद रखनी है। सो पहली वूमेन जिन्होंने भारत रत्न मिले वो भी इंदिरा गांधी सी, ते पहली वूमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया दी कौन सी, इंदिरा गांधी, ठीक है जी। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंदिरा गांधी फॉरेस्ट अकेडमी नूं नोट कर लो। चलते हैं फिर आप जल्दी नैक्सट क्वेश्चन। क्लियर है जी। नेक्स्ट देखो राजे, अगला क्वेश्चन की है, फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन इज मेनली अफेक्टेड बाय द कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस किसी टाइम बहुत ज़्यादा फैलिया, है ना, कोई ज़्यादा दूर नहीं है, उस साल आप, है ना, पिछले 1-2 सालों की गल करिए तो काफ़ी ज़्यादा कोरोना वायरस के केसिस आपको देखने को मिले। तो वो इंसान का किहड़ा ऑर्गन सब तो ज़्यादा अफेक्ट होया सी, हार्ट, लंग्स, ब्रेन एंड किडनी। तो दसो इंसान तो हफर होया ही सी, है ना, तो पर ये दसना भी किहड़ा ऑर्गन सब तो ज़्यादा कोरोना वायरस के इफेक्ट होया सी, फटाफट आंसर करो जी सारे। हाँ जी, आंसर करो फटाफट। इंदर, रमन, हाँ जी, किरणदीप, हरपाल शर्मा, लखवीर गिल ने सी आंसर दिता, वेरी गुड। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज लंग्स। तो लंग्स जेडे है अपने फेफड़े वो सब तो ज़्यादा अफेक्ट हुए सी जी जो कोरोना वायरस आया सी, ऑक्सीजन जी है इंसान प्रॉपर नहीं लै पा रहा सी, है ना, सो लंग्स सब तो ज़्यादा अफेक्ट हुए सी कोरोना। तो कोरोना वायरस, है ना, इनू आप कोविड-19 कहने, इस बीमारी नू कोविड-19। तो कोविड की फुल फॉर्म है राजे कोरोना वायरस डिसीज, है ना, तो ये आया सी 2019। तो ये जड़ा है ये बीमारी अपन वायरस तो होंगी है, वायरस तो होने वाली बीमारियां राजे सारिया डेडली होंगी है, ज़्यादातर इंसान की जान ले लेंदी है। वायरस की एक स्टडी होंगी है राजे, इनू आप कहने जी वायरोलॉजी। तो वायरोलॉजी की होंगे स्टडी ऑफ वायरस, ठीक है। तो एक वायरस आप कंप्यूटर के भी पढ़ते हैं राजे, वो किहड़ा सी, कंप्यूटर वाले वायरस की फुल फॉर्म की है, वह फुल फॉर्म है जी वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ठीक है। सो ये वायरस है जो कंप्यूटर वाला वायरस है, तो इनू आप मालवेयर भी कहने, कि किहड़ी कैटेगरी के अंदर आ जाता राजे, इनू आप मालवेयर भी कह दें। सो ये भी चीज़ आप याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो बिल्कुल ये लंग्स नू हैंपर करती है। हार्ट की स्टडी होंगी है राजे, हार्ट की स्टडी आप कहने कार्डियोलॉजी, है ना, कि वही हार्ट है बेचारा जो वार वार हर्ट हो जाता है ना, कोई गल नहीं। तो ब्रेन की स्टडी आप कहने राजे न्यूरोलॉजी। सो न्यूरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ब्रेन। तो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर राजे आप पढ़िया सी, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किनू कहने हैं, तो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर आप राजे कहने CPU, दैट इज सेंटर प्रोसैसिंग यूनिट। किडनी की एक स्टडी होंगी है, किडनी की स्टडी आप कहने राजे, किडनी की स्टडी आप कहने नैफ्रोलॉजी। नैफ्रोलॉजी तुसी किडनी नू नैफ्रॉन्स भी कह सकते हो, नैफ्रॉन्स, ठीक है। इंसान च 2 किडनियां होंगी हैं, बाकी कुछ पता नहीं लगता, कई बार आईफोन लॉन्च हो जाता नवा जी, आईफोन 15 इंसान अपनी किडनी बेच के आईफोन ले लेंदा, ठीक है। तो यदी शेप किहड़ी होंदी है जी, बीन शेप होंदी है, राजमा, है ना, राजमा वर्गी शेप होंदी है। राजमा सब तो ज़्यादा कित्थे होंदे है, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर किहड़ा डांस होंदा है राजे, रॉफ डांस होंदा है। ये चीज़ आपां याद रख, क्लीयर है। बस आही चीज़ां 1-2 गल्लां मैं तुहानूं दस्सियां, बस आही गल्लां तुसीं याद रख, ठीक है। तो नोट कर लो, मैं थोड़ा नीचे हो जाना, नोट कर। हाँ जी, तो कर ले नोट, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो राजे की है, सो वायरस की फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सो डिपार्टमेंट तो सुनिया होगा राजे, NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज फॉर्म्ड अंडर प्रोविजन ऑफ विच एक्ट। उसके लिए आप एक्ट दसना है भी किहड़े एक्ट के अकॉर्डिंग ये बने। हाँ जी, इंसॉल्वेंट एंड बैंकरप्सी एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, पेमेंट एंड सैटलमेंट सिस्टम एक्ट या आधार एक्ट। तो किहड़े एक्ट के अकॉर्डिंग
ये डिपार्टमेंट है जो बनाया गया सी NPCI। सो इंपॉर्टेंट है राजे। आंसर की होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी ऑप्शन, दैट इज पेमेंट्स एंड सैटलमेंट्स एक्ट सिस्टम एक्ट। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਨਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ QR ਕੋਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ UPI ਪਿਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਨਾ, तो UPI ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਿਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਸ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸੰਭਾਲਦਾ ਜੀ NPCI। ਸੋ QR ਕੋਡ ਆਪਾਂ ਸਕੈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, QR ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ ਰਾਜੇ ਕੁਇਕ ਰਿਸਪੌਂਸ। ਸੋ ਕੁਇਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕੋਡ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ QR ਨੂੰ। UPI ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? UPI ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, UPI ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਸੋ UPI ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟ ਇੰਟਰਫੇਸ। ठीक है राजे, PSSB बोर्ड ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा पोस्ट है, तो अपन पता है सीनियर असिस्टेंट ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ठीक है, सो पिन ਦੀ फुल फॉर्म है जी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, सो इनू भी अपनी मैराथन क्लास ही समझो। ठीक है जी, अपनी रोज़ ही मैराथन आती है, सारे कदे कदे क्लास लाते मैराथन, अपनी रोज़ ही मैराथन है ना। चलो ध्यान रखें, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। सो ये डिपार्टमेंट संभालता है NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नोट करो, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन वाल। हाँ जी, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वाल। सो ये जो सैशन आप लगा रहे राजे, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये भी सी, जो सैशन आप लगा रहे हैं यदि PDF जो है प्रिंटेबल फॉर्मेट के उड़ान इंस्टीट्यूट बठिंडा के टैलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। ठीक है, विद आंसर मैं PDF तुहानू प्रोवाइड करा दूंगा, सारे क्वेश्चन ਉਹਦੇ आंसर एक पेज ਤੇ, ताकि ਤੁਹਾਡੇ ज़्यादा पेज भी वेस्ट ना होन, ਤੁਹਾਡੀ प्रिंटिंग कोस्ट, ਤੁਹਾਡੇ फालतू पैसे ना लगन है ना। जे बाकी तुसीं अच्छे तरीके नाल तैयारी कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो तुसीं इन्हां क्वेश्चनस नू प्रिंट निकलवा के भी अपने नोट्स दे विच सेव कर सकते। ठीक है, तो चलते नैक्सट क्वेश्चन। अगला देखो राजे की है, तो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है राजे। तो ਜਿਹੜੇ स्टूडेंट्स ऑनलाइन या ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं अपने अपकमिंग वैकेंसीज के लिए है ना, सो काफ़ी ज़्यादा पोस्ट अपन देखने को मिल रही है। सो उसके लिए बिल्कुल अपना राजे फ्रैश बैच स्टार्ट हो रहे हैं 11 सितंबर 2023 ਨੂੰ। सो 11 सितंबर 2023, तो इस तरीक ਨੂੰ नोट कर लो, इस तरीक ਨੂੰ अपना नवा बैच है जो स्टार्ट हो रहा है पंजाब की सारी अपकमिंग वैकेंसीज। ठीक है, तो ज़्यादा इंफॉर्मेशन के लिए तुसी इस कंटैक्ट नंबर ते या फिर इस कंटैक्ट नंबर ते स्क्रीन ते दिते कंटैक्ट नंबर ते कॉल कर सकते हो, आपसे अपना एनरोल करा सकते हो, रजिस्टर करा सकते हो। ठीक है, तो ऑफलाइन क्लासेस के लिए तुसी स्ट्रीट नंबर 1 अजीत रोड बठिंडा ते आके अपनी क्लासेस भी लगा सकते। ठीक है जी, तो न्यू बैच बारे एक इंपॉर्टेंट अपडेट सी 11 सितंबर, तो अपने नज़दीकी भरावां भैणां रिश्तेदारां नूं जरूर दसो। चलते नैक्सट क्वेश्चन वाल। अगला क्वेश्चन की है, ए दा मतलब दसना है उड़ान दे विच। तां उड़ान दे विच आपां ए दा मतलब दसना है। उड़ान देखो की है, एक इनिशिएटिव है ऑफ द सिविल एविएशन मिनिस्ट्री। तो अपनी एक मिनिस्ट्री है, तुहानूं पता है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है ना, तो उन्होंने एक स्कीम चलाई सी, उस स्कीम का नाम की है उड़ान। तो उड़ान दे विच ए दा मतलब की है राजे, आपां इह दसना। हाँ जी, तो उड़ान की फुल फॉर्म की है राजे? उड़ान की फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। उड़े देश का आम नागरिक। तो इन्हां दी स्कीम है भी अपना आम इंसान भी उड़ पावे। उड़ पावे मतलब भी वो भी जिहड़ा सफ़र है हवाई सफ़र कर सके। ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं है भी उड़ जे है ना, भी नेरी नाल उड़ जे या फिर वैसे ही आम इंसान तो ही उड्डे फिरदा महंगाई दे नाल है ना। ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं है। सो ਇਹਦਾ मतलब ये है भी आम इंसान भी जहाज़ का सफ़र कर सके है ना। भी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਤਾ ਰਾਜੇ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰੀਜਨਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੀਜਨਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕ ਫਲਾਈਟਾਂ ਚਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਕ ਆਪਾਂ 에ਅਰਪਲੇਨ ਸਰਵਿਸ ਚਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। मतलब भी अपने शहरों ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਚਲਾਤੀ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਚਲਾਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, तो इदा आप रीजनल कनैक्टिविटी देनी है ना, ताकि जो आम इंसान है जोड़ा बेचारा पहला ही उड्डिया पिया उन्होंने आप होर उड़ा लीए। ठीक है, गुड इवनिंग ममता राणी। तो ये फुल फॉर्म होगी बी ऑप्शन, दैट इज आम। ठीक है, तो आम हो जाएगा। ये पूछा सी
ਤਾਂ ਉਡਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਰਾਜੇ ਆਮ ਆਮ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂਗੋ ਅਟਰਲੀ ਬਟਰਲੀ ਡਿਲੀਸ਼ੀਅਸ ਤਾਂ ਮੈਂਗੋ ਰਾਜੇ ਕੀ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰੂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ है ना तो हर आम इंसान तो फिर वही आम इंसान आ गया हर आम इंसान इस आम नू खा सकता है ठीक है सो दिस इज द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया ਇਹਦਾ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਨੇਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਨੇਮ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂਗੀਫੇਰਾ ਇੰਡੀਕਾ ਮੈਂਗੀਫੇਰਾ ਇੰਡੀਕਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਨੇਮ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਆਪਣੀ ਯੂਪੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਯੂਪੀ 'ਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਯੂਪੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੰਬ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ यूपी च देखने को मिलती नेक्स्ट देखो अगला जी नैशनल फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कित्थे है तो मैनू लगता भी हुण इस क्वेश्चन का तुसीं आंसर दे ही दोगे है ना तो नैशनल फॉरेस्ट मैनेजमेंट है तो तुहानूं पता लग गया भी फॉरेस्ट वर्ड आ गया है ना तो हाँ बिल्कुल हाँ लो टिकट प्राइसिस भी होंगे इहदे च तो फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट आप दसना है कित्थे है बहुत ईजी क्वेश्चन है आराम नाल आंसर दे दोगे मैनूं लगदा तुसीं है ना ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਦੋਗੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਆਨਸਰ ਦੋਗੇ तो गलत हो गया है ना मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ चीटिंग कर ली गलत हो गया गलत हो गया गलत हो गया देहरादून गलत है जी गलत है तो आंसर हो गया था सी ऑप्शन ठीक है ना उन्हें ऐ कर लो ऊप्स ये तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ बुद्धू बनाता तो जरूरी नहीं है हर फॉरेस्ट वाले देहरादून से होंगे ठीक है मैं ज्यादातर क्या से भोपाल च है ठीक है तो सी आंसर होगा गुड इवनिंग कोमल गर्ग जी तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर दैट इज भोपाल भोपाल इज द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश रांची की कैपिटल है रांची कैपिटल है जी छत्तीसगढ़ दी ठीक है देहरादून कैपिटल है राजे अपनी उत्तराखंड दी इंदौर इंदौर इज द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया ठीक है अपने इंडिया का सब तो साफ शहर है इंदौर इंदौर भी कितने राजे MP है ना इंदौर वैसे भी इंडोर है इंडोर इंडोर तो सफाई होंगी है आउटडोर सफाई नहीं होंगी इंडोर सफाई होंगी है तो क्लीनेस्ट सिटी तो लगातार 6th टाइम 6वीं बार लगातार इंडिया का साफ शहर बन गया जी इंदौर ठीक है हाँ ऊप्स हो गया ना ऊप्स मैं तो ऊप्स कर लो सुभाषी रशपाल सिंह ठीक है भोपाल च तो नेशनल फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ये है जी भोपाल च ठीक है चलो चलते नेक्स्ट अगला देखो की है जी तो स्नो लैपर्ड एक किहदा स्टेट एनीमल है किहड़ी स्टेट दा हाँ जी सो किहड़ी स्टेट दा जिहड़ा स्टेट एनीमल है उहदा नाम है जी स्नो लैपर्ड जम्मू कश्मीर अरुणाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड सो दसो तो स्टेट एनीमल दसने आपां ठीक है स्नो लैपर्ड दसना है स्नो बर्फ च रहिंदी है लैपर्ड बर्फ देख लो कित्थे है उत्तराखंड अरुणाचल हिमाचल या जम्मू कश्मीर नहीं सो जम्मू कश्मीर नहीं होगा इस क्वेश्चन का अपना आंसर होगा सी ऑप्शन दैट इज हिमाचल प्रदेश तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर जेड़ा स्नो लैपर्ड है ये अपना हो जाऊगा हिमाचल प्रदेश का हिमाचल प्रदेश की राज्य अपनी कैपिटल की है जी शिमला तो शिमला इज द कैपिटल ठीक है जम्मू कश्मीर की अपनी दो कैपिटल है एक अपनी जम्मू तो दूसरी किहड़ी है जी श्रीनगर तो श्रीनगर यदि किहड़ी कैपिटल है श्रीनगर है जी अपनी समर कैपिटल तो जम्मू है दी अपनी विंटर कैपिटल क्लियर है अरुणाचल प्रदेश जी अपनी स्टेट है अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है जी ईटानगर अरुणाचल प्रदेश आप कहने हैं लैंड ऑफ राइजिंग सन ऑफ इंडिया ठीक है सो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारे स्टैटिक जीके दे लैंड ऑफ राइजिंग सन ऑफ इंडिया अरुणाचल प्रदेश 7 सिस्टर से एक है उत्तराखंड की कैपिटल है राजे देहरादून ठीक है जी इंपॉर्टेंट है तो आंसर होगा सी ऑप्शन दैट इज हिमाचल एंड प्रदेश स्नो लैपर्ड तो नोट करो चलते हैं अगले क्वेश्चन वाल हाँ जी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो राजी की है अगला क्वेश्चन है which of the following ports in India has been renamed as दीन दयाल पोर्ट so important question है इंडिया च केड़ा पोर्ट है बंदरगाह है जिन्हों आपां रीनेम नाम बदल के उन्होंने आपां की करता दीन दयाल पोर्ट कर तो आपां दसना केड़ा पोर्ट मुर्मुगांव पोर्ट कोचीन पोर्ट तूतीकोरिन या फिर
कांडला। इंपॉर्टेंट है जी भी पोर्ट सारे। तो केड़ा पोर्ट होगा जिन्हों आप दीन दयाल पोर्ट भी कहने? सो आंसर होगा अपना डी ऑप्शन, दैट इज कांडला पोर्ट। सो कांडला जिहड़ा पोर्ट है राजे, ये जिहड़ा पोर्ट है ये अपना है गुजरात दे विच। तो इहदा नाम बदल के हुण आपां की करता? दीन दयाल पोर्ट। ठीक है जी, तो डी ऑप्शन इज द करैक्ट आंसर। ठीक है जी। इस तो इलावा जिवें बाकी जिवें पोर्ट्स देख लो, आपां नूं तूतीकोरिन पोर्ट पुछिया जांदा है। तूतीकोरिन पोर्ट कित्थे है? तमिलनाडु च। ठीक है। मुरमुगांव पोर्ट कित्थे है जी? गोवा दे विच। ये भी इंपॉर्टेंट है, गोवा तो गांव याद हो जाऊगा। ठीक है, सो ये भी सारे की है इंपॉर्टेंट पोर्ट्स के नाम। तो तमिलनाडु कैपिटल हो चुकी है अपनी चेन्नई, गुजरात दी गांधीनगर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है जी ये पोर्ट्स। तो कांडला पोर्ट का नाम है, नवा नाम की है दीन दयाल पोर्ट। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज कांडला। तो नोट करो, चलते हैं फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन वाल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो राजे की है। सो अगला क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन। प्राइमरली द एंट स्टिंग इज विच ऑफ द फॉलोइंग। तो एंट का जो स्टिंग है, एंट स्टिंग मतलब कीड़ी का डंग है, वो आप दसना भी केड़ा एसिड है जिहड़ा वो हुंदा। तो ऑप्शन देखो की है, सिट्रिक एसिड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, टार्टरिक एसिड या फिर फॉर्मिक एसिड। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर करो जिहड़ा एंट का स्टिंग होगा उस केड़ा एसिड आपां नूं मिलूगा। हाँ जी, तो रशपाल सिंह वेरी गुड, फॉर्मिक एसिड आंसर दे रहे हो, बिल्कुल ठीक है। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज फॉर्मिक एसिड। सो एंड स्ट्रिंग दे विच आपां नूं किहड़ा एसिड मिलूगा राजे? फॉर्मिक एसिड, इंपॉर्टेंट है। टार्टरिक एसिड ये आपां नूं मिलदा जी ग्रेप्स दे विच। तो ग्रेप्स दे विच किहड़ा एसिड हुंदा? टार्टरिक एसिड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला की है? MgOH2। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस हुंदा है। ठीक है, ते सिट्रिक एसिड आपां नूं मिलदा हमेशा सिट्रस फ्रूट दे विच। सिट्रस फ्रूट्स, तो सिट्रस फ्रूट्स किहड़े हुंदे? सिट्रस फ्रूट्स अपने खट्टे फ्रूट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो खट्टे फ्रूट्स ये हमेशा अपन सिट्रिक एसिड देखने को मिलेगा। सो खट्टे फ्रूट्स कोई भी खट्टा फ्रूट हो गया, मेन जिमें लैमन हो गया, ऑरेंजिस हो गए। ठीक है, सो ये हमेशा किहड़ा एसिड मिलेगा? सिट्रिक एसिड। ठीक है, तो एसिड है हमेशा बेस के नाल रिएक्ट करके की बनूगा? सॉल्ट बनूगा, प्लस और की बनूगा? वाटर बन। तो एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। ये रिएक्शन अपन एग्जाम पूछी जाती है। तो इनू आप कहने जी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन इनू रिएक्शन आप क्लियर है? सो नोट करो, चलते हैं फिर आप अगले क्वेश्चन। जो फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला लिखना है तो भी लिख लो, बिल्कुल ईजी है। फॉर्मूला होंगे HCOOH। ठीक है, कई बार अपन फार्मूला एग्जाम दे देंगे हैं। तो फार्मूला की हो गया था HCOOH। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो राजे की है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट। सो फर्स्ट इंडियन वुमेन दसनी है जो माउंट एवरेस्ट से पहुंची, उन्होंने नाम की सी? अरुणिमा सिन्हा, संतोष यादव, प्रेमलता अग्रवाल या फिर बचेंद्री पाल। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज बचेंद्री पाल। तो बचेंद्री पाल वाज द फर्स्ट वुमेन टू रीच द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट। सो ए माउंट एवरेस्ट ते पहुंचे सी जी 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ फिर आपां इंडियन गवर्नमेंट ने इन्हों 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ अपने इंडिया का 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी दिता सी, वो दिता सी जी पद्म भूषण। तो पद्म भूषण अवार्ड भी इन्हों मिलिया सी 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ बचेंद्री पाल नूं, बिकॉज इन्होंने फतेह किया सी माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट किहड़े देश च? नेपाल दे विच। नेपाल दे विच इन्हूं आपां कहने जी सागरमथा। तो वेरी इंपॉर्टेंट, इन्हूं नेपाल च की कहने जी सागरमथा। नेपाल की कैपिटल है जी काठमांडू।
ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अपना पड़ोसी देश है, सो याद रखना है। माउंट एवरेस्ट हाइट है दी 8848 मीटर। So this is the highest mountain peak of the world, Mount Everest. Highest mountain peak of the world. ठीक है, सारे पॉइंट्स अपने लिए इंपॉर्टेंट है। सो आंसर हो गया ऑप्शन दैट इज बचेंद्री पाल। 1984 ਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪੜਿਆ ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਵੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ये भी 1984 ਚ हुई सी। तो 84 ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ है ना, ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। तो सारे इवेंट्स अपने लिए इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वाल। नेक्स्ट देखो राज की अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन श्रीलंका एंड द इंडियन आर्मी। तो इंडियन आर्मी ते श्रीलंका च आपां मिलिट्री एक्सरसाइज दसनी हो किहड़ी है। तो मिलिट्री एक्सरसाइजेस आपां नूं पुछी जांदियां ब्लू स्टैग, मित्र शक्ति, मैत्री या फिर इंद्र। हाँ जी, सो श्रीलंका ते इंडियन आर्मी जिहड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज हुंदी है दा नाम है जी मित्र शक्ति। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज मित्र शक्ति। तो मित्र शक्ति जिहड़ी एक्सरसाइज है श्रीलंका ते इंडियन आर्मी दे विचकार हो जाती हुंदी है। तो श्रीलंका कैपिटल है दी श्री जया वर्धने पूरे कुटे कोटे। ठीक है, श्रीलंका इस दो धर्म है जी मेन, एक बुद्ध धर्म है, एक इस कौन है मुसलमान, मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है। ठीक है, बुद्धिस्ट से मुसलमान ज़्यादा है। सिन्हाला इत्थे दी लैंग्वेज है। ठीक है, श्रीलंका दी, श्रीलंका का पुराना नाम की है राजे सिलोन, सिलोन इसका पुराना नाम है। इंडिया तो श्रीलंका नूं कौन सैपरेट करता है, पाक स्ट्रेट। तो पाक स्ट्रेट सैपरेट करता है इंडिया श्रीलंका नूं। ठीक है, या तुसीं कह सकते हो इंडिया श्रीलंका, इंडिया श्रीलंका का देश हो गए। जे स्टेट पूछ लैन तो स्टेट हो जाऊगी अपनी तमिलनाडु, तमिलनाडु इंडिया च है, तो श्रीलंका च है जी जाफना। तो इतने जाफना स्टेट है। सो इंडिया की जाफना नाल सैपरेट कर दी। ठीक है, पाक स्ट्रेट इंपॉर्टेंट है, चीज़ आप याद रखनी है। ठीक है जी, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन वाल। सो ये सी आज अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद करता तुहानूं सारिआं नूं सैशन समझ आया। सो अज के लिए आप इन्ना ही करते राजे। सो मिलांगे अपने अगले पार्ट्स। ठीक है, तो ठीक है जी, सैशन अच्छा लग गया तो सैशन नूं लाइक कर दिओ राजे, शेयर कर दिओ ते कमेंट बॉक्स दे विच अपने कमेंट करके जरूर दस्सिओ। चलो, सो डेली दलजीत कौर जी डेली अपनी क्लास होंदी जी 6:45 बजे। ठीक है, इस तो पहला वाली क्लास भी तुसीं देख सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो अपने कमेंट बॉक्स दे विच अपने कमेंट करके जरूर दस्सिओ, क्लासेस बारे जरूर दस्सिओ, क्लासेस नूं रेट कमेंट रिव्यू जरूर करियो। तो गुड नाइट एवरीवन, स्वीट ड्रीम्स। विक्रमजीत सिंह जी नाइस क्लास, थैंक यू। प्रीति सुरिंदर जी, रजपाल सिंह जी थैंक यू। चलो, ठीक है जी, सो मिलते हैं अगले पार्ट्स। टिल देन थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू ऑल। सो अपना ध्यान रखो, अपनी हेल्थ, फैमिली फ्रेंड्स का ध्यान रखो, अपने घर की सेवा करो। तो मिलेंगे अगले पार्ट्स। थैंक यू, बेस्ट ऑफ